Good afternoon to everyone present here. I, Ankita Singh, student of PGDM batch 2022 to 24, is pleased to share that IILM Academy of Higher Learning Lucknow is observing the Pakhwada on discrimination against women and implementation of sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 during November 25th to December 10, 2022. In this context, the session is organized on the topic gender sensitization and overview of POSH Act. Today, we are privileged to have Advocate Swati Sinha ma'am as the guest speaker for the session. On behalf of the faculty, staff, and student of IILM Lucknow, I welcome you, ma'am. Advocate Swati Sinha ma'am is a practicing advocate at Lucknow Bench of High Court of Allahabad. Her area of expertise includes risk, jurisdiction, service matters, criminal appeals, and revision. She is a known face in covering legal news, judgments, updates, and has her own legal blog by the name of DRS Chambers, which has a wide post reach across the country and is shared in the most reputed law sites. She also uploads videos on the basic law for common people to understand in a series called Law for Layman. She's an avid reader, writer of short stories, and a national award-winning singer. Now, I'll request ma'am to start the session. A very good afternoon to all of you, and thanks a lot for that intro, Ankita. When I came to know that I'm having a session with you all on gender sensitization and POSH Act, I was both nervous and excited. Nervous because it will be the first time I'll be addressing a bunch of young MBA students, and excited because teaching is something which comes very naturally to me, and I like to share my knowledge, whatever little knowledge do I have, with people around. So before I start, I just want to let you know that I have planned my session in such a way that I have kept in mind that you have some idea about gender sensitization and no prior information regarding POSH Act, because the POSH Act is a very law, it's a legal thing. So I don't expect MBA students to understand this. So I've given the entire overview of POSH Act 2013. So I'll share my presentation with you all, and I hope you will be able to understand it. Just bear for something. Just a second. Wait a second. I think there's some problem with the slide. Okay, so here we begin. So let's start with understanding what is gender, how is it different from sex, and how does gender bias creeps in our mind right from the beginning. Now, students, if I say the following words, think ma'am. in your mind. Am I audible, ma'am? Ma'am, your slide is not visible. You cannot see my slide. No, ma'am. Just a second, ma'am. Can you see my slide right now? No, ma'am. I think you have not shared No, it. just a second, just a second. Yes, ma'am. Now, Yes, can you ma'am. see? Yes, Is it ma'am. visible? Yes, ma'am. Right, it is Okay. visible. Sorry for that. Okay, I was saying that if I say the following words, think who comes in your mind. Brave, strong, beautiful, daring, compassionate, caring. So very easily we attribute qualities like brave, strong, and daring to males, and beautiful, compassionate, and caring to females. कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा प्रतिशत लोगों के मन में यही बात आती है. तो आज हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं.
I, as a woman, can be brave, strong, and daring, and I may not be compassionate, caring, and loving at all. And that does not make me any less a woman. So let's start with the definition of gender and sex and how they are different. Now, sex refers to different biological and physiological characteristics of male and female, such as chromosomes, hormones, and reproductive organs. We can understand that. Now, gender refers to characteristic of a gender that is socially constructed. This includes norms, behaviors, and roles associated. लाइक एक लड़का है तो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको इस सेट पैटर्न में काम करना चाहिए। अगर एक लड़की है तो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको इस सेट पैटर्न में काम करना चाहिए। सो व्हाट आर दीज आर द नॉर्म्स दैट हैव बीन मेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, दैट इज व्हाई वी से कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। नाउ if gender varies from society to society and can change over time. Now, what can be a norm in one part of the world may not be a norm in another part, and it changes with time. तो हम देखते हैं चीजें कितनी फास्ट पेस पे चेंज हो रही है। Things are changing for the betterment only. लेकिन फिर भी काफी चीजें हैं जिनको अभी भी चेंज होना है और अभी भी हम उस सेट नॉर्म में अभी भी रह रहे हैं। So next is sensitization. Sensitization refers to sensitivity towards a particular thing. तो सेंसिटाइजेशन तभी हमको ये टर्म मिलता है जेंडर सेंसिटाइजेशन। सो प्रॉब्लम विद जेंडर इज दैट वी असाइन जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइपिंग विच लीड्स टू जेंडर बायस एंड इनइक्वालिटी। तो कोई भी स्टीरियोटाइप जब भी आप क्रिएट करते हैं, व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप? इट इज एन अजम्पशन अबाउट अ पर्सन बिकॉज दे आर और फीमेल्स। जैसे मेल फीमेल मेल स्टीरियोटाइप आपका होता है कंसिडरिंग मेन एज प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द फैमिली, and women stereotype आपका होता है considering women as the main caregiver in the family, restricting her to the household chores only. As I said earlier कि अब change हो रहा है, but still. So this stereotyping leads to inequality because what we believe about women and men influences how we act towards them. So basically, when we stereotype, we create bias for both, and it is not healthy for either of the gender. So if a job is offered to a person based on his or her capacity rather than his or her gender, it will be a win-win situation for both the genders. Then there are thousands and thousands of biases which are there, but I'm just listing a few. Difference in wages or salary of men and women. अच्छा, अब होता ये है कि in mostly in unorganized sector, this is very unfortunate, but this is very true also कि there's a difference in wages of men and women, because आप assume करते हैं कि एक lady है तो वो कम काम कर पाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आदमियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, औरतों को कम पैसे मिलते हैं। ठीक है। Now colors used to decorate the room, pink for girls, blue for boys, types of toys, dolls for girls, guns for boys, and clothing styles for boys and girls. Most of the time, school textbook shows pictures of women doing household chores. As I said कि अब चेंज हो रहा है, but still अभी भी आप अगर आप एक कोई भी क्लास 4th की या प्राइमरी सेक्शन की अगर आप बुक उठा के देखेंगे, इट इज द मदर जो चाय बना रही है एंड इट इज द फादर जो चाय पी रहा है। ठीक है। सो ये अभी भी प्रिवलेंट है और बच्चे अज्यूम करते हैं कि ये एकदम सही नॉर्म है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ऐसा ही देख रहे हैं वो। Advertisements and films featuring women taking care of children, whereas men going out to work. अब एडवर्टीजमेंट फिल्म्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मीडिया है जो इसको कि आई थिंक और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वाइल देयर इंटर जॉब इक्वालिटी दिखाने में उन लोग को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। Women should have long hair and men should have short hair. Women are emotional, men are rational. Boys and men should not cry. But लड़के रोते नहीं हैं. I really find it very strange because as a human being, we all need to vent out our feelings. And it is quite normal for us to cry. So you see, biases affect both the genders. ऐसा नहीं होता है कि खाली औरतें ही इससे affected हैं. हर लड़के भी उससे अफेक्टेड है, एक आदमी भी बहुत अफेक्टेड होता है बिकॉज आपने उसका एक सेट नॉर्म बना दिया है कि भाई तुमको ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है। सो आई गेस जब आप जेंडर सेंसिटाइजेशन लाते हो तो दोनों लोगों के लिए ही दोनों जेंडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। So now if you look at the definition of the term gender sensitization, it means to make people aware of the power relation between men and women in society
and to understand the importance of affording women and men equal opportunities and treatment. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट दो. सो बेसिकली इट मीन्स दैट व्हेन वी रिमूव ऑल बायसेस एंड अनइक्वालिटीज relating to a particular gender and instead focus on the capacities and strength as a person. एक आदमी में जो स्ट्रेंथ है, एक लेडी में जो स्ट्रेंथ है, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ज्यादा ये सोचते कि वो काम कर पाएगी क्योंकि वो लेडी है, या वो आदमी ये काम कर पाएगा क्योंकि तो औरतों का काम है, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी. किसी भी सोसाइटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट मिक्स ऑफ टैलेंट चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उस मिथ को तोड़ें जो समाज में बने हुए हैं. अ गर्ल कैन लीड अ टीम ऑफ 50 men. वो कर सकती है. एंड अ फादर कैन टेक अ बेटर केयर ऑफ हिज चाइल्ड कंपेयर टू मदर. जो हम नहीं मानते, बट ऐसा हो सकता है. सो यू we need to remove these myths which are going around in the society. And need for gender sensitization at workplace. अब आप सब MBA के स्टूडेंट्स हो, और वेरी शॉर्टली यू विल बी जॉइनिंग द कॉर्पोरेट लाइफ. तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके वर्क प्लेस पे हाउ कैन यू बी लाइक मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर जेंडर. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट बोथ फील वैल्यूड इन सोसाइटी एंड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ. ये बहुत जरूरी. एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब चाहते हैं कि हमारी वैल्यू हो. एक डिग्निफाइड लाइफ की जो वैल्यू है वो एक हर आदमी को चाहिए होती है. Then gender insensitivity and inequality in terms of difference in salary, wages, organizational culture are major factors that lead to a decline in productivity. It's very unfortunate that in many sectors there's a difference in wages of men and women, as I said earlier. And this leads to a lot of dissatisfaction. See, because if you don't get rewarded for what you do, or you don't get promoted, so obviously it will lead to low performance or the loss of productivity. आप किसी जगह ऐसी जगह काम नहीं करना चाहोगे जहाँ पे आपकी वर्थ ना हो. आप काम कर रहे हो लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिले, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको सैलरी हाइक ना मिले. सो दैट इज वाई जो ये डिफरेंस होता है, ये इट इफेक्ट्स एवरीबडी. When both genders feel empathetic towards each other, it creates a positive culture at home, workplace, and in society. It's easy to understand. Leads to gender justice, equality, and inclusion. An insensitive workplace also becomes a hostile workplace. Now, in an office space, if both the genders are not sensitive to the need of the other gender, it will not be a very inclusive workplace. ठीक है, हर आदमी अपने आप को इंक्लूडेड नहीं पाएगा उस वर्क स्पेस में, क्योंकि आपने उसको तो बाहर करा हुआ है कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, है ना. एंड दिस गोज बोथ वेज. एक महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये बात भी ठीक नहीं है. सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस. अब this was with gender sensitization. Now, once you have an overview and an understanding of gender bias and discrimination, it will be easy for you to understand the intention of the legislature for introducing POSH Act 2013. POSH Act लागू होने से करीब 20 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने इस एक्ट की नींव रखी थी, द भवरी देवी केस. I don't know how many of you have heard about it, but भवरी देवी का केस 1992 में काफी ज्यादा, 90s के दशक में काफी ज्यादा उसकी चर्चा हुई थी, और उसका रीजन भी था. I'll start like this कि भवरी देवी she was a social worker who was working under the Rajasthan government's women development program. So as a part of her job, she had to spread awareness about family planning and necessity of educating children, और dowry और child marriage जिसके against उसको campaign करना था. तो it was all part of her duty. तो she stopped a wedding of a 9-month-old girl, and I'm not mistaking. एक 9 महीने की बच्ची की उसने शादी रुकवाई. And what is the reward that she gets in return? Very unfortunate. She was gang raped by 5 men in front of her husband. Now, very unfortunate, but Bhavri Devi was a very courageous lady. So she filed a criminal complaint against the offenders. But because of the botched up inquiry, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो इतना गलत हुआ था कि all the accused were acquitted by the trial court. In fact, इस केस में विलेज अथॉरिटीज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस सबने भवरी देवी का साथ नहीं दिया था.
उनका मेडिकल 52 घंटे बाद कराया गया, जबकि मेडिकल घटना की 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। किसी भी अगर आपकी रेप की घटना होती है तो मेडिकल फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाना चाहिए, बट इनका 52 घंटे बाद हुआ था। तो एंड द इंटायर एटमॉस्फेयर वाज वेरी होस्टाइल टुवर्ड्स हर। तो जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने ये करा था, वो सब एक्विट हो गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं आ पाए। Then one thing very important to understand here is that Bhavri Devi was doing everything as a part of her job with Rajasthan government. वो सोशल वर्कर नहीं थी, वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं से आके उन्होंने शादी रुकवाई। ये उनका काम था, इट वॉज पार्ट ऑफ अ जॉब। शी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। बट जब ये केस हुआ तो गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खींच लिए और उनकी कोई हेल्प नहीं की। तो जब ट्रायल कोर्ट ने उनको छोड़ा तो काफी जो फैसले के इस फैसले के खिलाफ काफी विमेन ग्रुप ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया थ्रू अ PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसमें से एक ग्रुप था विशाखा एंड विमेन रिहैबिलिटेशन ग्रुप। अब काफी और ग्रुप थे, काली, जागोरे, ये सब दिल्ली के थे और विशाखा ये राजस्थान का था। तो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाज अ लैंडमार्क वन, as it laid down elaborate guidelines to deal with the menace of sexual harassment against women at workplace. और इसकी रूलिंग थी वो 3 जज बेंच जो थी उसने दी थी, जिसमें चीफ जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता वी मनोहर एंड जस्टिस BN कृपाल थे। अब हम सब ये जानते हैं कि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है, पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बढ़कर गाइडलाइंस बनाई थी, विच वर नोन एज द विशाखा गाइडलाइंस। और दिस इज वन ऑफ द क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब कोर्ट्स जो हैं दे डिसाइड कि नहीं, अब हमको गाइडलाइंस बनानी, हम कुछ देंगे सोसाइटी को जो हमारे हिसाब से ठीक है, बिकॉज लेजिस्लेचर तब तक पॉश एक्ट लेके नहीं आया था। तो देयर हैज टू बी समथिंग जो लेडीज अपना वर्क प्लेस पे काम कर रही है, इफ दे आर सेक्सुअली हैरेस्ड, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो इसको लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी इन द ईयर 1997। नाउ विशाखा गाइडलाइंस इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो पॉश एक्ट था वो लागू हुआ था 2013 में एंड विशाखा गाइडलाइंस आ गए थे 1997 में। सो ये सारी तो विशाखा गाइडलाइन ने एक ओवरव्यू दे दिया था पॉश एक्ट को कैसे होना चाहिए। Then what were the pointers in Vishakha guidelines? Now understand, कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को सबसे पहली बार डिफाइन किया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आखिर है क्या, है ना। इट सेड कि एनी फिजिकल टच और कंडक्ट, एनी वर्बल टॉन्ट और मिसबिहेवियर, शोइंग ऑफ पोर्नोग्राफी, आस्किंग फॉर एनी सेक्सुअल फेवर, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। It was held that sexual harassment at workplace should be informed, produced and circulated. So ये इसमें सबसे पहली बार ये दे रखा था कि अगर आपने ये या ये करा, या आपके साथ ये या ये हो रहा है, तो फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। For the time-bound and effective redressal of complaints, a robust mechanism should be in place at workplace. अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी रिड्रेसल है, रिड्रेसल मतलब उसका निवारण। आप अगर एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया है तो उसका रिड्रेसल कैसे हो, तो वो वर्क प्लेस पे ही हो। इसके लिए उस लेडी को कहीं जाना ना पड़े, अपनी ऑफिस में ही वो कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। A complaints committee should be in place, which should be headed by a woman, and more than half of its members should also be women. अब ये बहुत जरूरी है because see, if a lady has been sexually harassed, she will not feel it very comfortable to speak to ग्रुप ऑफ मेन और मैन अबाउट इट कि ये हुआ या ये इंसिडेंट हुआ या इसने मुझे ऐसे करा। सो शी विल बी मोर कंफर्टेबल इफ अ कमिटी हैज मोर देन हाफ ऑफ इट्स मेंबर एज विमेन, और जो लीड कर रही है वो भी एक लेडी हो। So in order to prevent any pressure from the higher ups, a third party like an NGO should be involved. अब NGO हम लोग इसलिए इन्वॉल्व, इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने इसलिए इन्वॉल्व करा बिकॉज NGO एक इन पार्शियल इंक्वायरी देता। बिकॉज देखिए, जो आपकी कमिटी में जो लोग हैं वो सब एम्प्लॉयज हैं आपकी, उसकी सेम एम्प्लॉयर की। तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए बहुत जरूरी था कि वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते। दैट इज वाई NGO को मैंडेटरी करा गया।
Moreover, concrete steps must be taken to create awareness at the workplace as to what is sexual harassment. अब ये बहुत जरूरी है कि सबको पता हो कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, जो बोल रहा है उसको भी, कि मुझे इस एक लिमिट तक इस तरह बात करनी है, इसके बाद ये इनकी बाउंड्री है, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना है, दिस इज द वे आई शुड रिस्पेक्ट अ लेडी टू हुम आई एम टॉकिंग। तो ये आप कोई ऐसे वर्ड ना यूज करो जो उसको अनकंफर्टेबल कर दे, आप कोई ऐसे जेस्चर मत करो जो उसको अनकंफर्टेबल कर दे, और आप ऐसा एक्ट तो बिल्कुल नहीं करिए विच मेक्स हर फील कॉम्प्रोमाइज्ड। देन एक बात मुझे बताना सही लगा कि ऐसा नहीं था कि 2013 के पहले कोई लॉ ही नहीं था फॉर विमेन एट देयर वर्क प्लेस। इंडियन पिनल कोड या आईपीसी जो होता है, जो उसमें सेक्शन 354 और सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी थे। सेक्शन 354 था आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, एंड सेक्शन 509 था punishes an individual for using the, just a second, आपका सेक्शन 509 that I'm pointing, and section 354 for using a word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. अब इसमें nowhere it has been defined कि what constitutes an act of outraging the modesty of a woman. जैसे previously अगर एक complaint होती थी, if a woman was subjected to an act of sexual harassment, she went to the police station to lodge a complaint. Now, police station is not a very inviting place to go, let alone for a woman who has been sexually harassed. Okay, we all admit that. So when she went to the police station, जो भी officer in charge होता था, वो पूछता था कि भाई क्या हुआ. Then she used to say कि भाई this person he touched my back or he touched my shoulder, and they used to laugh and say कि भाई this is nothing, ये criminal assault तो है नहीं, molestation है नहीं, तो we can't write a complaint. So this was very embarrassing. See, for a woman who has first been sexually harassed, and then there was nobody to acknowledge it also. So that is why we needed an act for the women at workplace. So that is why the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 ये आया, इसको पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट किया. And as we see that sexual harassment is a very sensitive issue, and you need to handle it with care, patience, confidentiality. So as young graduates, you will be joining corporate, you should have this basic knowledge about POSH Act. So ये तीन इसके salient features थे. First is prohibition, second is prevention, and third is redressal. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपका तीन चीजें उन्होंने कहा था कि prohibition, prevention and harassment and redressal of complaints. क्योंकि redressal of complaints बहुत जरूरी है. आपको पता है कि ये नहीं होना है, आपके साथ ये हो गया, तब आप क्या करोगे. That is why redressal जो mechanism है POSH Act का, that is the most effective one. Now, if you look at the applicability, it extends to whole of India and it is not gender neutral. मतलब ये खाली women को ही cover करता है. A man who is a victim of sexual harassment is not entitled to invoke the POSH Act, लेकिन उसके अपने service rules पे वो अपने rely कर सकता है. There are some definitions जो आपको जाननी चाहिए. One is the aggrieved women. अब aggrieved women हम किसको बोलते हैं? In relation to a workplace, a women of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent. ठीक है? And in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house. अब आप देखिए कि पॉश एक्ट में कितना इंटेलिजेंटली काम किया है लेजिस्लेचर ने. उसमें सारी महिला कर्मचारियों को डाला है जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं. गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ तक कि एक प्राइवेट ड्वेलिंग प्लेस जैसे कि आपका घर भी. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे ना पॉश एक्ट में उन्होंने एम्प्लॉय या कर्मचारी को कानूनी परिभाषा में नहीं बांधा है. उसमें सारी महिला कर्मचारियों को पॉश एक्ट का प्रोटेक्शन मिला है. वो एक रेगुलर एम्प्लॉय हो सकती है, टेम्पररी हो सकती है, एडहॉक हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है, ट्रेनी हो सकती है, अप्रेंटिस हो सकती है, प्रोबेशनल तरह से लगी हो सकती है. शी में बी वर्किंग विदाउट रिम्यूनरेशन, वॉलंटरी बेसिस पे काम करने वाली अगर लेडी है तो भी आप उसको एम्प्लॉय मानोगे.
Now, what is a workplace? अब इसमें वर्कप्लेस बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज इस एक्ट में सबसे पहली बार एक्सटेंडेड वर्कप्लेस का कॉन्सेप्ट रखा. सो इन एडिशन टू द ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, उसको भी इन्होंने वर्कप्लेस माना है. तो इसका वर्कप्लेस का मतलब खाली कारखाना या आपका ऑफिस नहीं, बल्कि जॉब के संबंध में आप किसी भी जगह जाते हैं उससे वर्कप्लेस माना गया है. सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस ट्रिप्स, टैक्सी सर्विसेज, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, जूम मीटिंग्स, इन सबको भी वर्कप्लेस के दायरे में रखा गया है. नाउ अब थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक करते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आखिर है क्या. नाउ very simply put, a sexual harassment is any unwelcome, sexually determined, physical, verbal or non-verbal act against a woman. तो इसमें जो उसको डिफाइन करा है एक्ट ने, उसने ऐसे करा है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट के एडवांसेस इंक्लूड कर रहा है, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट. तो इसमें तीनों कैटेगरीज को रखा है. फिजिकल तो आएगा ही आएगा, वर्बल भी आएगा एंड नॉन वर्बल. अगर आप कुछ बोल भी नहीं रहे बट थ्रू योर जेस्चर्स आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सेक्सुअली इंक्लाइंड है, सेक्सुअली आप दूसरे को हैरेस कर रहे हो, तो वो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है. नाउ एज आई सेड अर्लियर कि पॉश एक्ट की सबसे खास बात उसकी कंप्लेंट्स कमेटी है, जो कि यहाँ पे दो तरह की कमेटियों का प्रावधान है. फर्स्ट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एंड सेकेंड इज द लोकल कमेटी. नाउ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो हर एम्प्लॉयर को बनानी है जो कि जिसके पास 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं. अंडरस्टैंड, यहाँ 10 से ज्यादा विमेन एम्प्लॉयज नहीं बोला है, उन्होंने कहा एम्प्लॉयज हैं. आपके पास अगर एक लेडी भी है एज एम्प्लॉय और आपके पास 10 से ज्यादा लोग हैं तो भी आपको आईसीसी इन प्लेस रखना पड़ेगा. Failure to set up an ICC has led to can lead to the imposition of fine. 50,000 तक का फाइन है अगर आप मैंडेट, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आपको बनाना ही बनाना. आपने तब जब नहीं बनाया तो आप पे 50,000 का फाइन लगा, और अगर फिर भी नहीं बनाया तो आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है. तो इट इज मैंडेटरी प्रोविजन अंडर पॉश एक्ट. कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. तो इस जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है जो कि वर्कप्लेस पे होती है, उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अ वुमेन वर्किंग एट अ सीनियर लेवल एट द वर्कप्लेस. तो या तो आपकी कोई एचआर में काम करने वाली हो, आपकी लीगल सेल में काम करने वाली कोई भी सीनियर लेवल की जो लेडी है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मानी जाती है. Then minimum 2 members from amongst the employees. तो employees में ही दो लोगों को, somebody who's having legal knowledge, somebody who's having experience in social work, तो इन सब लोगों को आप members बना सकते हैं. Then external members में from amongst NGOs, associations committed to the cause of women. As I said in the Vishakha guideline also कि आप NGOs या बाहर के लोगों को इसलिए involve करते हो क्योंकि आप एक impartial inquiry चाहते हो. See, because at the end of the day प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो चाहे वो दो मेंबर्स हो, वो सब एक ही एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज हैं. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर से इन्फ्लुएंस में वो आ सकते हैं, बट एक एनजीओ या एक बाहर के आदमी को ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. सो दैट इज व्हाई इट हैज एक एक्सटर्नल मेंबर का होना जरूरी है आईसीसी में. एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट का काम है कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी करे. इसका एक हेड वो होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जो कि एलसीसी बनाता है. 3 जगह पे एलसीसी काम करती है, या तो इफ द कंप्लेंट इज रिलेटिंग टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, या where the establishment where ICC has not been constituted on account of establishment having 10 employees. अब किसी जगह पे 10 से कम एम्प्लॉयज है, 5 ही एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पे आईसीसी नहीं बनाई. तो अगर वहां पे कोई हैरेसमेंट होता है तो वो कहाँ पे जाएगी, वो एलसीसी को अप्रोच करेगी वो लेडी. एंड इन केस द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही कंप्लेंट है, जो मालिक है उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो फिर आईसीसी उसको नहीं देखेगा, क्योंकि आईसीसी फिर बायस हो जाएगा. एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जिसमें गवर्नमेंट की जो है कमेटी, वो उसकी जो सेक्सुअली हैरेस लेडी है उसकी कंप्लेंट देखेगी. एंड इसमें मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए होते हैं इन लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. नेक्स्ट वी कम टू द रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लेंट.
नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लेंट? जो लेडी है वो जिसको कंप्लेंट करनी है, शी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 6 कॉपीज ऑफ द रिटन कंप्लेंट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड नेसेसरी डिटेल्स within 3 months from the date of incident to the ICC और LCC. अब ऐसा होता है कई बार कि एक बार आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपने उसको इग्नोर कर दिया कि इग्नोर करा आपने। सेकंड टाइम में आपने हुआ, आपको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, इनको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड टाइम आप यू डिसाइडेड कि नहीं मैं तो कंप्लेन करूंगी। तो 3 मंथ्स कब से माना जाता है? जो लास्ट इंसिडेंट होता है उससे 3 मंथ्स के अंदर आपको जो है आईसीसी या एलसीसी को कंप्लेन कर देनी है। मतलब इफ इट इज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, तो सबसे लास्ट डेट से जो इंसिडेंट होता है उसमें आपको इन्फॉर्म कर देना है आईसीसी या एलसीसी को 3 महीने के अंदर। एंड जो आपको नेसेसरी डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है, जैसे आपके एसएमएस हो गए, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, सीसीटीवी फुटेज हो गया, विटनेसेस हो गए। जैसे आपके साथ कोई घटना हुई, उस टाइम 2 लोग और वहां खड़े थे, तो वो आपके विटनेस हो गए। आप कहेंगे नहीं इसने मुझे ऐसे बोला, ये 2 लोग भी खड़े थे, तो वो आपके विटनेस हो गए। या अगर कोई सीसीटीवी फुटेज में somebody ट्राई टू जस्ट टच यू इनअप्रोप्रिएटली, तो आपने बताया नहीं हम वहां पे थे, सीसीटीवी कैमरा था, आप रिकॉर्डिंग बना के देख लीजिए। देन थर्ड, अगर कोई आपको जबरदस्ती कुछ गलत लिख रहा है आपके व्हाट्सएप पे, तो आप उस पूरे स्क्रीनशॉट को उसको भी आप उसमें लगा सकते हो। सो दीज आर द एविडेंसेस which need to be filed along with the written complaint. अच्छा, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके पास एविडेंस हो, नहीं होगा तभी भी रिटन कंप्लेंट आपकी एक्नॉलेज की जाएगी। देन अगर 3 महीने में आपने नहीं करा है, तो 3 महीने का टाइमलाइन और एक्सटेंड हो जाता है एज इन केस सफिशिएंट कॉजेज डेमोन्स्ट्रेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने पहले 3 महीने में क्यों नहीं कंप्लेन की। एंड अगर वो कॉज सही होता, आप कह दोगे कि मैं बहुत डर गई थी या उन्होंने मुझे धमकाया था इस टाइप से, तो उस चीज को उस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। In case the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of a physical, mental incapacity, और अदरवाइज her legal aid such other person may be prescribed। तो अगर कोई लेडी है वो समझ नहीं पा रही है या वो लिखना नहीं जानती है, या मान लीजिए इस बीच उसकी डेथ ही हो गई, तो उसका लीगल एड जो भी होगा वो भी कंप्लेन उसके बिहाफ पे कर सकता है। कंसिलिएशन, अच्छा, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंसिलिएशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अग्रीड वुमेन। मतलब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो नहीं कह सकता कि मैं आई वांट टू गो फॉर कंसिलिएशन। जो अग्रीड वुमेन है वो जब इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले कह सकती है कि ठीक है, अगर इन्होंने मुझसे माफी मांग ली तो मैं इस बात को यहीं छोड़ दूंगी। आई विल नॉट परस्यू इट फर्दर। हाउएवर नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी अराइव्ड। तो ये तो ऑब्वियस है, ये बहुत अनएथिकल होगा कि आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करो और फिर पैसे लेके वो कंप्लेन वापस ले लो। दिस इज नॉट अलाउड एनीवेयर इन लॉ ऑल्सो, और ऐसे भी नहीं। तो नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी अराइव्ड। रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड टाइमलाइन इन्वॉल्व। तो पॉश एक्ट का जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए, जब आप एफआईआर करते हो या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कोई टाइमलाइन नहीं होती है उसको कंप्लीट होने में। ट्रायल्स आपके सालों साल चलते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह का ट्रायल है, कैसे हो रहा है, विटनेसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। लेकिन पॉश एक्ट में जब उन्होंने रिड्रेसल करा तो उन्होंने इसके साथ टाइमलाइन दी। टाइमलाइन इसलिए दी कि जिस लेडी ने आपकी कंप्लेन कर दी है उसके साथ ये ना हो कि उसके सालों साल कंप्लेन चल रही है एंड एवरीबडी इज मॉकिंग अराउंड। जिसके खिलाफ की है वो भी उसी ऑफिस में है, वो भी कह रहा है कि अच्छा कंप्लेन की थी, देखा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर एट योर वर्क प्लेस। तो उस कंप्लेन को जल्दी से जल्दी उसका टाइमलाइन दे रखा है। like submission of complaint is within 3 months of the last incident, and ये जैसे मैंने बताया था, notice to the respondent within 7 working days of receiving a copy of complaint। अब respondent कौन हुआ? जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जब आपने कुछ एविडेंस दिए हैं, आपने कुछ विटनेसेस प्रोड्यूस किए हैं, तो वो जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की है उसको भी आप पूरा मौका दोगे अपनी बात कहने का। वो बोलेगा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, या ये गलत बोल रही है, या मेरा ये मतलब नहीं था, या मैंने ऐसे नहीं बोला था। तो ही ऑल्सो हैज अ राइट टू से कि नहीं ये कंप्लेन गलत है। देन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी विद इन 90 डेज। सो जितने भी विटनेसेस हैं, जितने भी एविडेंस है, जो भी बयान आपके कंप्लेनेंट के हैं, जो भी बयान रिस्पोंडेंट के, ये सब करके इंक्वायरी कंप्लीट होने का टाइम इन्होंने दिया है 90 दिन, विद इन 90 डेज।
Submission of report by ICC, LCC to employer as or district officer as the case may be. तो जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है. तो रिपोर्ट बनने का टाइम दिया विद इन 10 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी. 90 दिन में आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई. 10 दिन आगे के 10 दिन मिले हैं आपको उसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन विद इन 60 days. अब रिकमेंडेशन क्या हो सकता है? कई बार आप पीनल प्रोविजंस में जाते हैं, जैसे आप एफआईआर करते हो कि भाई ही क्रॉस सिमिलर टू दिस मंथ, तो इनके अगेंस्ट एफआईआर होगी. और दूसरा होता है कि आप अपने सर्विस रूल्स के अंडर आप एक्ट करते हो कि भाई आपने किसी की प्रमोशन रोक लिया, किसी को ट्रांसफर दे दिया, किसी की पे हाइक रोक ली, किसी को डिसमिस कर दिया, किसी को टर्मिनेट कर दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स, और किसी को सस्पेंड कर दिया. सो ऑल दिस कैन बी डन विद इन द सर्विस. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्विस रूल होता है. तो उसी सर्विस रूल के हिसाब से आप जो है उसको जो भी रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि इसमें जो है एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा दायित्व दे रखा है पॉश एक्ट में. रीजन ये है कि भाई जो आपके अंडर काम करने वाली लेडीज हैं वो आपके लिए ही काम कर रही हैं, और अगर उनको सेफ और सिक्योर फील कराना ये भी आप ही का काम है, बिकॉज वर्किंग अंडर यू इन योर ऑफिस. तो इनको इतना सिक्योरिटी तो आपको आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है देने की. So provide a safe and secure working environment, set up an ICC and ensure redressal of grievances of workplace sexual harassment in time-bound manner, जैसे कि दे रखा है पॉश एक्ट में. Display the penal consequences of harassment in the workplace. अब आपको बताना है कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ FIR या पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है. Organize workshops and awareness, as I said, regular intervals पे, ताकि सबको पता रहे कि क्या चीज किस कैटेगरी में आती है और लोगों को अपनी बाउंड्रीज पता रहे. प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू द आईसीसी. आप जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है उसको आपको एक ऑफिस देना पड़ेगा. अगर वो विटनेसेस बुला रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इंक्वायरी कर नहीं पाएंगे. ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज मिसकंडक्ट अंडर सर्विस रूल्स. और ये हर जगह है भी, क्योंकि सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो सर्विस रूल्स दे रखे हैं उसमें मिसकंडक्ट की कैटेगरी होती है, तो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को तो माना ही जाता है. एंड इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट सच मिसकंडक्ट. मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द आईसीसी. प्रोवाइड असिस्टेंस इन कॉज टू इनिशिएट एक्शन अंडर आईसीसी. जैसे मैंने कहा था कि अगर पीनल प्रोविजंस होते हैं और आपको आईसीसी बोलता है कि नहीं इनके अगेंस्ट तो एफआईआर करनी चाहिए, इन्होंने ये बहुत गलत किया है, तो उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी अपनी एम्प्लॉय की. असिस्टेंस सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेसेस बिफोर द आईसीसी. अब आईसीसी तभी काम कर सकता है जब उसके पास जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है वो अपीयर हो, विटनेसेस जिनको बुलाए वो आए. तो ये रिस्पॉन्ड विटनेसेस आप ही के उसी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज हैं, तो ही हैज टू मेक श्योर कि आईसीसी के सामने ये लोग पहुंचे. ऐसा ना हो कि जब आपको विटनेसेस बुलाया गया तो उन्होंने कहा नहीं हम तो आ नहीं सकते हैं, या हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था. तो आईसीसी के सामने रिस्पॉन्डेंट और विटनेसेस को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉयर की होती है. Then additionally, the employer is responsible for the following as per POSH law. Now, frame a POSH policy. तो हर कंपनी की अपनी एक POSH policy है that prohibits unwelcome behavior that constitute workplace sexual harassment, prevents the incidence of sexual harassment. तो आपको एक POSH policy अपनी बनानी होगी कि भाई ये हमारी policy, आपको ऐसे नहीं behave करना है. You have to tell others through sensitization sessions. और एक detailed framework बनाना है for redressal. Declare the name and contact details of all the members of ICC. तो जो आपके मेंबर्स होते हैं आईसीसी, उनके नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इसलिए बताने हैं क्योंकि अगर एक लेडी को सेक्सुअली हैरेस करा गया है, शी हैज टू नो कि वो किसको अप्रोच करे, कहाँ जाए और कहाँ पे करे अपनी कंप्लेन दर्ज कराए. Publish the POSH policy over the company website. Submit an annual report to the district officer prepared by ICC containing the details of number of cases filed and the disposal. A number of workshops. तो जितने भी workshops आपने करी हैं sorry, वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड, या जितने भी केस आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइल हुए हैं, कितने केस डिस्पोज हुए हैं, तो ये सब की जानकारी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देनी पड़ेगी. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गवर्नमेंट के अंडर काम करता है. सो बेसिकली आप जो है एक एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट को बताए कि उसके यहाँ ये केस फाइल हुए हैं और इतने डिस्पोज हुए हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी.
the act prohibits the publication or making known the contents of a complaint and the inquiry proceeding due to sensitivity attached. Now this is a very sensitive topic, इसलिए कभी भी complainant का नाम या respondent का नाम या जितने भी witnesses हैं, इन सबको आपको इन सब का नाम और जो इन्होंने बोला है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी भी हम लोग कोर्ट्स में देखते हैं, कभी भी कोई रेप रिलेटेड केस होता है तो कभी भी आप किसी का नाम ओपन नहीं करते, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। तो इसी तरह, बिकॉज दैट्स सेंसिटिव इशू एंड सेम इज द केस हियर। और आप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप काफी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से, बट पॉश एक्ट को इससे एक्सक्लूड करा गया है। पॉश एक्ट में जो भी कार्रवाई हुई है किसी भी ऑफिस में, उसमें आप आरटीआई के जरिए आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। Contravention of the provisions of the POSH Act, including failure to constitute, तो आपकी पेनाल्टी जो मैंने पहले बताया था कि 50,000 की एम्प्लॉयर पे लगती है। और खाली इतना ही नहीं, अगर वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। Consequences of making a false or malicious complaint. So अब इतनी बात हम लोगों ने सुनी कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए किसी के खिलाफ फॉल्स या फ्रिवलेस या मिलिशियस कंप्लेंट की है, तो ये भी बहुत गलत बात है, बिकॉज ये तो फिर पूरा इस एक्ट का आप मिसयूज कर रहे हैं। और कोई भी लॉ अगर आपको प्रोवाइडेड है आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। सो जो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके सर्विस रूल्स में लिखा होगा, जो कि रिस्पोंडेंट पे था कि भाई आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपकी प्रमोशन रुक सकता है, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, वही एक्शन आपके अगेंस्ट भी हो सकता है अगर आपने एक फॉल्स या मिलिशियस कंप्लेंट करी, नोइंग फुल्ली वेल कि सिर्फ आपको उस आदमी से आपको अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने थे, आपको वो आदमी नहीं पसंद था और आपने उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवा दी। सो दैट इज वाई ये इस चीज को एकदम एक्ट ने बोला है कि ये इसके खिलाफ भी, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो गलत रिपोर्ट लिखवाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड पॉश एक्ट। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है एंड आई होप थोड़ा थोड़ा आप लोग की समझ में आ गया होगा। सो बैक टू अंकिता। I don't know whether Ankita is there or not. Ma'am, there are a lot of questions in the chat box. Oh, let me see. Yes, ma'am. अच्छा, क्विड प्रो क्यू हैरेसमेंट, ये होता है कि जैसे आपने किसी को बोला कि भाई तुम अगर मेरे लिए ये करती हो, इफ यू गो ऑन अ डेट विद मी, और कुछ भी चीज अगर आप सेक्सुअली कोई आपसे कुछ मांग रहा है और आप उसको बोलते हो कि हम जो है आप मेरी ये कर लोगे तो मैं तुमको प्रमोशन दे दूंगा, या अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको प्रमोशन नहीं दूंगा या मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्विड प्रो क्यों उसको बोलते हैं कि भाई अगर आप मुझे दोगे तो इन रिटर्न में आपको ये दूंगा। ठीक है, तो ये जब आप किसी को ये चीज भी पॉश एक्ट में इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज पॉश एक्ट में ये इसको एक गुनाह माना गया है, बिकॉज आप किसी को इस सेक्सुअल फेवर के उसमें आप नहीं उसको कह सकते हो कि हम आपको डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट देंगे या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जस्ट बिकॉज शी हैज सेड नो, तो आप उसको डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो कि भाई तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी मानी, शी इज बीइंग प्रमोटेड और तुम यहीं पे रहो। सो दैट इज वाई ये तो क्विड प्रो का मतलब है कि तुमने इफ यू डू दिस फॉर मी, आई डू दिस फॉर यू, अदरवाइज आई विल ट्रीट यू इन सम अदर वे। आई कैन नॉट सी द चैट बॉक्स। एक पहला क्वेश्चन दिखा था मुझे। मैम, सुप्रीम कोर्ट वाज मेकिंग लॉ विदाउट अ परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। इफ यू अंडरस्टैंड, मैंने गाइडलाइन बोला था, उसने लॉ नहीं बनाया है। लॉ बनाने का काम बेटा हमेशा लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है, पार्लियामेंट बनाता है लॉ। सुप्रीम कोर्ट हमेशा गाइडलाइंस देता है, और गाइडलाइंस का ये उसका जैसे इफ यू नो द हायरार्की, सबसे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी वो एक जजमेंट देता है, वो एक बाइंडिंग हो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स पे और नीचे वाले कोर्ट्स पे। तो जब उसने विशाखा, आपने अगर इफ यू हैव हर्ड द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, उसका मतलब होता है कि जब कोर्ट ने अपने खाली फैसला सुनाने से आगे बढ़कर काम किया कि नहीं ये गलत हुआ था, और हमारे हिसाब से अब तक इस पे कोई लॉ बना नहीं था। पॉश एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2013,
और हुआ ये कि ये जो केस था ये 1997 का था, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट कुछ प्रोटेक्शन उन लेडीज को दे जो कि वर्क प्लेस पे हारिस हुई हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस दी थी। एंड इफ यू सी, जो विशाखा गाइडलाइंस थी और जो आपकी ये वाली जो पॉश एक्ट था, काफी कुछ सिमिलर है। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस जो जो दे रखा था उसको उसी को लेके पॉश एक्ट एक तरह से बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट नहीं बनाया, इट इज उसने गाइडलाइंस बनाई थी विच आर नोन एज विशाखा गाइडलाइंस। देन my question is that there may be few sexual advances which cannot be proved. Such advances are quite common, like casual flirting and commenting on body type. What is the remedy for that? देखो, ये होता है कि एवरीबडी शुड नो देयर बाउंड्रीज। ठीक है, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो वन साइडेड है एंड सेकेंडली वो अनवांटेड है। ठीक है, आई एम देयर, ठीक है, आपने मेरे बारे में कोई एक जोक क्रैक करा जो मुझे लगा कि ये सही नहीं है, ठीक है, एंड आई शो माई, मैं बोलती हूँ कि नहीं, आई डोंट अप्रूव ऑफ सच अ बिहेवियर, मैं बोल देती हूँ कि दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप किसी को धक्का मारते हो तो ऑब्वियसली समझ में आ जाता है कि उसको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज बात बोल रहे हो मेरे सामने, वर्बल आप कोई चीज बोल रहे हो, तो इट इज इफ आई से कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे या मेरे सामने इस तरह के जोक्स आप मत करिए, या आप मुझसे ऐसे मत बात करिए, somebody is commenting on my anatomy, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग लाइक दिस, तो या आप मुझसे ऐसे बात मत करो। और उसके बाद भी अगर आप करते हो, कॉमन जो कैजुअल फ्लर्टिंग बोलते हैं उसको, वो भी दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और कमेंटिंग ऑफ बॉडी शो टाइप इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट। भाई आपने मुझे बोला, जो मेरे फिजिकल उस पे कुछ बोला और मुझे नहीं अच्छा लगा, और मैंने कहा आप नहीं बोलिए, या आपने बहुत ही क्रूड लैंग्वेज मेरे लिए यूज की, तो फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता ही आता है। बिकॉज सी, सेक्सुअल हैरेसमेंट में हम वर्बल, फिजिकल और नॉन वर्बल को भी मान रहे हैं। सो इफ समबडी विंक्स एट मी, तो ऑब्वियसली बात है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है, हु वुड बी हैप्पी कि आप उसको विंक कर रहे हो। सो दिस इज कैजुअल फ्लर्टिंग जो है वो भी आएगा, और एनी काइंड ऑफ एडवांसेस वो भी आएगा, कमेंटिंग ऑफ बॉडी टाइप भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। व्हाट इज होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट? होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ये हुआ बेटा कि जैसे सपोज आपके यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, आपके यहाँ 13 लोग मेल हैं, 2 लेडीज हैं, और 13 लोग बैठ के ऐसे बैठते हैं, एंड दे कमेंट नोइंग फुल्ली वेल कि 2 लेडीज वहां बैठी है, उस भाषा में यूज करते हैं विच कैन मेक एनी लेडी अनकंफर्टेबल। तो इसको हम होस्टाइल वर्किंग कंडीशन बोलते हैं। बिकॉज ये जो एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो अलग चीज का है कि भाई आपके बॉस ने बोला मुझे 2 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन दो, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसको आप सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं बोलोगे, वो आपको डांट सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट आप सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको मानते हो कि जहां हॉस्टल, आपको पता है कि इफ अ पर्सन इज टॉकिंग टू योर मदर लाइक दैट, इट विल बी, उसका सबसे अच्छा यही है कि अगर आप अपने घर की लेडीज की के सामने वो बात नहीं बोल सकते, तो आप बाहर भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग ये समझो कि हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट वो हो गया कि सपोज आई नो कि आप ऐसा बोल रहे हो विच विल ऑफेंड मी, नोइंग फुल्ली वेल कि विच विल ऑफेंड मी, और तभी भी आप बोल रहे हो, तो दैट इज नोन एज हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ इफ women put false allegation, can men also file complaints in case? नहीं, as I said, पॉश एक्ट में बेटा विमेन को ही खाली सेव किया है, और खाली विमेन रिलेटेड ही है, तो इसमें आदमी या ट्रांसजेंडर्स ये लोग कंप्लेन नहीं कर सकते अंडर दिस एक्ट। लेकिन हर, जैसे मैंने पहले बताया था और लिखा भी है कि हर उसमें आपका एक वो होता है, सर्विस रूल्स होती है, सर्विस रूल्स होते हैं, तो उसमें मिसकंडक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट को माना जाता है। तो इफ यू हैव अ लेडी बॉस और उसने आपको हैरेस करा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, नॉट अंडर पॉश एक्ट, नॉट अंडर पॉश एक्ट, बट ये जो आपका सर्विस रूल्स है इसके अंडर आप कंप्लेन कर सकते हैं। हॉस्टाइल वाला, इफ सी इफ आई एम, मैं और मैसेजेस आई एम नॉट एबल टू सी। व्हाट शुड वी डू इफ समबडी इज फेसिंग हैरेसमेंट? अगर आप कोई हैरेसमेंट फेस कर रहा है, तो एज आई सेड, अगर आपकी ऐसी कंपनी है जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, तो आपके पास एक आईसीसी भी होगा, तो उसमें आप जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। रिटन कंप्लेंट होगी, 6 कॉपीज होंगी, और उसमें आप एविडेंस अगर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो अगर आपकी कंप्लेंट ही, एविडेंस का ये होता है कि सपोज अगर आपको कोई कंटिन्यूअसली बुला रहा है डेट पे, या कह रहा है आप चलिए मेरे साथ, या बेकार के टाइम आपको ऑड टाइम पे मैसेजेस कर रहा है, तो इस सबको भी हम
अपने उसमें कंप्लेंट के साथ लगा सकते हैं। एंड या किसी की, जैसे मैंने बोला कि जैसे आप कॉफी पीने गए तो आपके साथ 4 लोग हैं, एक आदमी ने आपसे मिसबिहेव करा तो बाकी 3 लोग को आप एज विटनेस ले जा सकते हो। ठीक है। इज पॉश ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर ऑल? ट्रेनिंग मैंडेटरी कि आप जिस कंपनी में काम करोगे आपका सेंसिटाइजेशन सेशंस और वर्कशॉप्स आपकी कंपनी में एज ए रूल होंगी ही होंगी। इट इज लॉ के हिसाब से ही जरूरी है। मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर का दायित्व है कि वो पॉस्ट ट्रेनिंग सबको दे। मतलब एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये है क्या। और आप बिकॉज ये जब आप बताते हो तो एक लेडी को भी अपने राइट्स के बारे में पता चलता है और एक आदमी को भी पता चलता है कि उसको किस लेवल तक अपनी बाउंड्रीज रखनी है। ठीक है। I have a question. Is it true that due to Poshmark, certain organization don't prefer keeping more women employees? बेटा, there are thousands of things. ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हम लोग अब ना एक बहुत बड़ी फोर्स है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। काम नहीं चलेगा किसी का भी हम लोगों के बिना। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू कीप अस। एंड ये बिकॉज खाली पोशाक नहीं, अब तो मेटर्निटी जो रूल्स आ गए ना, हम लोग इतना देखते हैं कि मेटर्निटी रूल्स होते हैं तो दे डोंट कीप मैरिड लेडीज के, नहीं मैरिड को नहीं लेना, अनमैरिड को लेते हैं, अभी तुरंत शादी हुई, या दे प्रिफर समबडी विद 2 किड्स। हम लोग तो इतने केसेस देखते हैं। सो दिस इज ट्रू, बट किसी का काम चलेगा नहीं हमारे बिना, रेस्ट एश्योर। सब हम लोग रहे, वी आर देयर। How much you feel that Vishakha guidelines are implemented by the industries or corporations? बेटा, अब तो विशाखा गाइडलाइंस की जगह पॉश एक्ट आ गया है। विशाखा गाइडलाइंस पे थे जब हमारा पॉश एक्ट नहीं था, और विशाखा गाइडलाइंस की ही सारी बातें पॉश एक्ट में कही गई हैं। और पॉश एक्ट इज मैंडेटरी। जब कोई एक्ट होता है, कोई लॉ होता है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको वो चीज माननी ही होती है। ठीक है। और आप नहीं मानते हो तो आपके खिलाफ प्रोविजंस हैं। आपको बताया था कि आईसीसी नहीं होगा तो पीनल प्रोविजन आपके अगेंस्ट, आपका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। एंड अगर आपके आईसीसी से अगर वो लेडी संतुष्ट नहीं है तो भी उसके पास जो पुलिस वाला ऑप्शन है, या जो पीनल या आईपीसी के उसमें पास जाने वाला ऑप्शन है, वो तो हमेशा ही रहता है। इट इज ऑलवेज देयर। ठीक है। तो दिस इज देयर। एनी मोर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? मैंने 3 तरह के बताए हैं। एक तो फिजिकल, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। आपने जैसे कई बार होता है, ये है कि जैसे सपोज देयर इज अ पर्सन, उसकी बहुत आदत है टच करने की, बात करते करते शोल्डर पे। इट्स वेरी कॉमन फॉर हिम कि भाई आप बात कर रहे हो, उसने कैजुअली शोल्डर पे रख दिया, आपको नहीं पसंद है तो यू टेल हिम कि नहीं, या यू मूव बैक, या ऐसे करके, और उसके बाद भी वो जबरदस्ती कर रहा है। तो एक शोल्डर इज समथिंग, पैटिंग इज वेरी कॉमन, बट अगर somebody who is touching or who is एट योर बैक, तो वो तो एकदम ही आउटराइटली आपको पता चल जाएगा कि दैट इज हैरेसमेंट। देन वर्बल, वर्बल में ये हो कि आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो कि अच्छे नहीं लगे, जो कि आपको पता है कि प्रोवोकेटिव है, सेक्सुअली इंक्लाइंड है। आप कई वर्ड्स हैं जो लड़के बहुत आराम से यूज करते हैं, लड़के भी बहुत आराम से यूज करते हैं, बट विच इज नॉट वेरी कंफर्ट, विच कैन नॉट बी वेरी कंफर्टेबल टू मी। मुझे नहीं पसंद आएगा कि आप मुझसे ऐसे बात करो या ऐसे वर्ड्स मेरे साथ यूज करो। एंड आई शो कि नहीं, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, या आप मेरे लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। कई बार होता है आप एनाटॉमी में कि अरे बड़ी मोटी लग रही हो, अरे ये तो ऐसा हो गया। सो थिंग्स आर लाइक दैट कि वो चीज अगर मैंने बता दिया कि मुझे नहीं पसंद है, या आप मेरे बारे में ऐसे नहीं कर, ऐसी बात मत करिए, और उसके बाद भी अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली हैरेसमेंट में आता है। नॉन वर्बल होता है जब आप जेस्चर्स करते हो विच आर रॉन्ग। आप जेस्चर्स का तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग 12-13 साल से हम लोग को जेस्चर्स की आदत पड़ जाती है रास्ते में। सो यू नो कि व्हाट आर प्रोवोकेटिव जेस्चर्स एंड व्हाट आर जेस्चर्स जो बिना बोले लोग करते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी अनोइंग। एंड अभी भी मैं सोचती हूँ कि एट टाइम्स हम लोगों ने कभी ये बर्दाश्त किया भी क्यों। सो दिस इज समथिंग, तो ऑल 3 काइंड्स, आपका फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल, तीनों चीजों को इस कैटेगरी में रखा हुआ है, ताकि ये कोई ना बोले कि अरे मैंने तो उनको छुआ तक नहीं, इन्होंने मेरे खिलाफ कैसे कंप्लेन कर दी, अरे मैंने तो उनको बोला भी नहीं, इन्होंने कैसे कंप्लेन कर दी। सो ऑब्वियसली तीनों चीजें इसलिए रखी गई हैं सो दैट कोई भी आप किसी भी 3 फॉर्म्स में अगर आपको लग रहा है कि आपको हैरेस करा जा रहा है लगातार, सो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। My question is for cyberbullying. What can we do? साइबर बुलिंग ये होता है कि जैसे आपको कोई स्टॉक कर रहा है। इफ यू लुक एट द स्लाइड, मैंने आपको एक दिखाया था जिसमें कि अनफॉर्चुनेट जो निर्भया का हुआ था केस इन 2012,
उसके बाद आईपीसी 354 में सेक्शन 354 में 4 सबसेक्शंस पढ़ाए गए थे। उसमें स्टॉकिंग को भी बोला गया था और उसमें ऑनलाइन स्टॉकिंग को भी बोला गया था। साइबर स्टॉकिंग ये हो गया कि आप किसी के पेज पे आप लिखे जा रहे हो, आप उसको पोस्ट कर रहे हो और शी इज टेलिंग यू कि नहीं ये नहीं करो एंड स्टिल, तो इसके खिलाफ तो आप पीनल उस प्रोविजन में 354 सेक्शन 354 सबसेक्शन डी में आप जा सकते हो। यू कैन फाइल अ कंप्लेंट, आप पुलिस स्टेशन ही जा सकते हो। मैम कैन यू सी एनी मोर? Ma'am, the questions are over. ओवर ना? Okay. चलिए, तो आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा। एंड एज यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आई थिंक अब आप लोग जा रहे हो तो जस्ट अ लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, इसलिए बता रहे हैं। डू जितना आप अपने वर्क पे फोकस करोगे और जितना कम आप इधर उधर की चीजों पे ध्यान दोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज सी आप भी, आपको अभी जो जॉब मिलता है तो उसके साथ एक सैलरी भी आती है। सैलरी इज समथिंग विच इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर एनीबडी। तो उसमें होता है कि आप कई कई चीजें आप गलत कर देते हो या आप कई आप वो कर, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि जितना फोकस होके इनिशियल स्टेजेस में आप मेहनत करोगे, उतना ही आगे जाके आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज बहुत आराम से आदमी जो है अपने आप को गलत रास्ते पे ले जाना, इट्स वेरी इजी। बिकॉज वी सी इन कोर्ट्स अच्छे अच्छे घरों के बच्चे एंड यू नो अच्छे, जिनके आपकी पूरी अपब्रिंगिंग आपको कभी डाउट नहीं होगा कि ये बच्चा ऐसा काम कर सकता है। एंड वी सी इट सो ऑफन, पीपल गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ। सो एज अ लॉयर, एज अ elder, I can just suggest you कि you need to actually कीप फोकस ऑन योर वर्क। आपको ये समझना है कि मुझे एक अच्छा नाम जरूर चाहिए। मोर देन मनी, आई थिंक योर एम शुड बी कि एक अच्छा नाम होना बहुत जरूरी होता है। यू नो, क्लियर कॉन्शियस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो एक्स्ट्रा एडवाइस थी। एनीथिंग मोर यू लेट मी नो। Sorry, ma'am, I was muted that time and unable to unmute myself. That's why I didn't respond. अरे नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। तो आई होप एवरीबडी हैज Thank you, ma'am, for such a wonderful session. On behalf of the faculty, staff, and students of IILM Lucknow, I extend a hearty vote of thanks to our guest advocate Swati Sinha ma'am, who managed time from a busy schedule to share her valuable insights. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, प्लेजर वाज ऑल माइन। Wishing everyone a good Thank you, ma'am. 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 मैम कैन आई लीव नाउ? Yes, ma'am, you can do. We are closing the session. Have a good day.